A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the different important ratios from the chapter accounting ratio. As you know very well, in this chapter, we discuss a lots of the ratios, that is a debt equity ratio, total assets to debt ratio, interest coverage ratio. As well as in this video, let's discuss the few of the important ratios related to the different types of the ratio. If we are talking about the accounting ratio, so you know very well there are basically four types of the ratios. That is an accounting ratio, that is an profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, and activity ratio. So let us start the few question. Let me start the solution of the few question which already discussed and asked by the CBSE in their last few papers. So the first question is very simple question. Find out the current ratio. The first question is find out the current ratio if the information is working capital 5 lakh, working capital 5 lakh, trade payable 2 lakh, and short term provision 50,000. Short term provision 50,000. So you know very well what is the formula of current ratio. The formula of current ratio is current assets divided by current liability. And in this question you can see that trade payable and short term provision is given. So current liability equals to trade payable plus short term provision, that is in 2 lakh plus 50,000 equals to 2,50,000. This is in current liability. So how we will calculate the current assets? In this question you can see that working capital is given, and working capital equals to current assets minus current liability. And the working capital is 5 lakh. Current assets is not given. Current liability is 2,50,000. That's why current assets equals to 5 lakh plus 2,50,000 equals to 7,50,000. So this is on current assets. This is on current liability. So current assets 7,50,000 and current liability is 2,50,000. Now current ratio is 3:1. Okay. So in this question, firstly we calculate the current liabilities, which included a trade payable and short term provision 2,50,000, as well as we calculated the working capital. Working capital equals to current assets minus current liability. So the current assets will be a 5 lakh plus 2,50,000 equals to 7,50,000. Now we are moving to the second question. Second question is related to the current ratio also. And in this question you can see that the question is very long. That's why we require lots of space. The question number 2. The question is find out the current ratio once again. Find out the current ratio. And the information are total assets 4,50,000. Total assets 4,50,000. And long term borrowing 1 lakh. And shareholder fund 3 lakh. And fixed tangible assets 2,40,000. Fixed tangible assets 2,40,000. Non-current investment 1,50,000. And long-term provision is 20,000. So we have to calculate the current ratio with the given information. And what is the formula of current ratio? Current ratio equals to current assets divided by current liability.
current ratio equals to current assets divided by current liability. So what is in current assets in this question? So current assets equals to, as you can see that total assets given and current assets कैसे निकलेगा? Is it total assets is given and total is a combination of the नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. सो इसके लिए आप क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से मैं बताऊं क्या करना, आप सबसे अच्छे से आप बना लेना बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बना लोगे ना, सब पता चल जाएगा. रफ में बनाना बैलेंस शीट, वो भी पुराने तरीके से. कैसे? यहां क्या लिखते थे? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. इसमें क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. सो नॉन करंट एसेट्स कितना गिवन है नहीं पता, लेकिन टोटल एसेट्स कितना है? 4,50,000. सो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू द टोटल ऑफ द लायबिलिटी 4,50,000. ओके. इन दिस क्वेश्चन long term borrowing is a part of the non current liability. So non current liability is 1 lakh. Shareholder fund is 3 lakh. Fixed tangible assets is 2,40,000. 2,40,000 and non-current investment is a 1,50,000. So total non-current assets is 3,90,000. And long-term provision is also part of the non-current liability. So it is in 1 lakh and 1,50,000. So it is a total of 2,50,000. So यहाँ देखो आप current assets का balance कितना आ रहा है? 1,60,000. Sorry, only 60,000. And here 3 to 5,50,000. So 5,50,000 equals to, am I correct? Is in total assets 4,50,000, long term borrowing 1 lakh, shareholder fund 3 lakh, 2,40,000. Long term provision is a 20,000. Sorry for that, it is an 20,000. So 1,20,000 assets. So it is an 4,20,000, 30,000 is the current liability. So ये बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी से निकल गया, ये बैलेंसिंग फिगर किससे निकल गया? आपके एसेट्स के बैलेंसिंग फिगर से. सो आप चाहो तो उसको फॉर्मूले में भी बांध सकते हो. सो करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स विच इंक्लूड द टू थिंग्स, एक टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. और करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू द टोटल एसेट्स माइनस टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो इससे आपने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया. सो द करंट एसेट्स इज 60,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 30,000. सो द रेशियो इज 2:1. I hope it is clear for you. Now we are moving to the next question. The next question which are related to the next chapter, next topic, which is already asked by the CBSE in 2018. And the question is, अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो जो है वो 3:1 होता है, ठीक है? अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 3:1 होता है, ओके, एंड क्विक रेशियो 1.2:1 होता है, 1.2:1 होता है, और वर्किंग कैपिटल 1,80,000 हो, ठीक. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री. सो आपको करंट एसेट्स और इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एज यू नो वेरी वेल, करंट रेशियो इज 3:1, क्विक रेशियो इज 1.2:1. तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई. यू नो वेरी वेल, इन्वेंट्री इक्वल्स टू, आपको पता है इन्वेंट्री इक्वल्स टू व्हाट? इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, एंड
करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल को अगर फाइंड आउट करें तो क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ द अबव सिचुएशन वी कैन सी दैट कि करंट रेशियो इक्वल्स टू 3/x, दैट इज एन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन में बना रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। सो वी कैन सी दैट करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी, ये एक इक्वेशन बन गया। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखिए, क्विक रेशियो इक्वल्स टू 1.2:1 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सो वी कैन से दैट क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 1.2 करंट लायबिलिटी, कह सकते हैं, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो इस वाले फॉर्मेट पे पुट कर सकते हैं, यहां पर क्विक करंट एसेट्स, working capital, current liability. So we can say that working capital, current assets is 3CL equals to, current assets equals to 3CL, working capital is 1,80,000 plus current liability. So इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2CL equals to 1,80,000, so CL equals to 90,000. तो ये आ गया आपकी करंट लायबिलिटी, ये कैंसिल। फिर करंट एसेट्स कैसे निकालोगे आप, आपको सब सीधे पता है कि करंट एसेट्स, यहां अगर आप वैल्यू पुट करो, करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 1,80,000 और करंट लायबिलिटी आपने कितना निकाल दिया, 90,000, सो 2,70,000 इज योर करंट एसेट्स, ये कैंसिल आ गया। दूसरा आपको इन्वेंट्री निकालना है, तो क्विक करंट लायबिलिटी पता है, सो आप क्यों नहीं निकाल सकते। सो दूसरा आपको हो जाएगा क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1.2, दैट इज 90, 9 4 12, 9 4 13, 1,35,000. सो क्विक एसेट्स इज 1,35,000. क्विक एसेट पता चली, करंट एसेट पता चले, तो इन्वेंट्री क्या होगी, 2,70,000 माइनस 135 इक्वल्स टू 65, 135. सो योर इन्वेंट्री विल बी 135. सो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आएगा, दैट इज एन पहले हमने करंट लायबिलिटी निकाला 90,000, फिर आपने करंट एसेट्स निकाला 2,70,000, फिर आपने क्विक एसेट्स निकाला 1,35,000 और फिर आपने इन्वेंट्री निकाला 1,35,000. सो इन्वेंट्री और क्विक एसेट दोनों सेम ही लग रही है यहाँ पे, यस। तभी आप देखो तो वी कैन से दैट 1.2 इज दैट। सो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है कि 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 नॉट इज 1.5, ठीक है। तो यहां आपको करना पड़ेगा 90 and 18, 108, 1,08,000, क्विक एसेट्स 1,08,000, सो यहां पर आपको थोड़ा सा 1,08,000 माइनस करना पड़ेगा। सो नाउ योर इन्वेंट्री विल बी 0,002 6 इज देयर 1,62,000. तो ये 4 आंसर आपके होंगे और ये 4 मार्क्स में अप्रोक्सीमेटली पूछता है क्वेश्चन कि अगर आपके स्टेप सही, एक स्टेप ये, पहला स्टेप करंट लायबिलिटी निकालना, दूसरा स्टेप आपका होता है क्विक एसेट्स निकालना, तीसरा स्टेप आपका होता है करंट एसेट्स निकालना और चौथा स्टेप आपका होता है इन्वेंट्री निकालना। ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक इज calculate current, liquid and working capital, यानी current ratio, liquid ratio and working capital। और ये क्वेश्चन आया था आपका 4 मार्क्स में, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था। फाइंड आउट करंट एसेट्स, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशियो, liquid ratio and working capital, and the information is cash and cash equivalent 16 lakh, trade receivable 1,54,000, inventories 1,20,000, trade payable 1,50,000, short term borrowing 10,000, other current liability 10,000, other current assets 50,000. So cash and cash equivalent is 60,000.
क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड ट्रेड रिसीवेबल 1,54,000 एंड इन्वेंट्री 1,20,000 and trade payable 10,000 and short term borrowing is bank order of 10,000 and again other current liability 10,000. Trade payable is 1,50,000. Short term borrowing 10,000 and the other current liability is 10,000. And last one is the other current assets 50,000. So आप इतना सारा इंफॉर्मेशन देख के आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे चीजों को निकालेंगे। तो वो बहुत छोटी सी चीज होती है, क्योंकि इसमें हर ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। सो अगर हम यहाँ पे पहले रेशियो की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं current ratio. So current ratio equals to current assets divided by current liability. So current assets equals to, अगर इस क्वेश्चन में देखें, so cash in cash equivalent, trade receivables, inventories and other current assets are part of the current assets. Other current assets are part of the current assets. So cash in cash equivalent is 16,000, trade receivable 1,50,000, inventory 1,20,000, other current assets 1,50,000. So it will be a 273 and this will be a 170, 290, 390, 440. So current assets 4,40,000. Am I correct? There is a 340. Okay, 1, 2, 3. Am I correct? Current assets 340, 16,000, 154, 120, and only 50. Other current assets only 50. That's why it is a problem created. It will create a problem. Now we move to the current liability. According to the information, the current liability includes the trade payable, short term borrowing and other current liability. So trade payable will be a 1,50,000, short term borrowing is a 10,000 and other current liability is also 10,000. So current liability will be a 1,70,000. Current assets 3,40,000, current liability 1,70,000. So current ratio will be a 3,40,000 divided by 1,70,000 equals to 2:1. So current ratio is 2:1. Now the next ratio is liquid ratio. The next ratio of this question is liquid ratio. So the liquid ratio will be a, you know very well, liquid assets divided by current liability. And liquid assets equals to the current assets minus inventory minus prepaid expense. But according to this question, other current assets include the prepaid expense and payment of advance tax. So current asset में हम दो चीजें माइनस करेंगे, inventories and other current assets divided by current liability. So current assets will be a 3,40,000, inventories will be a 1,20,000 and other current assets will be a 50,000 divided by current liability equals to the 1,70,000. So current liability is 1,70,000, current assets 3,40,000, inventory 1,20,000, 50,000 is an other current assets. So the quick assets will be a 1,70,000. Am I correct? Yes. The quick assets is 1,70,000 divided by 1,70,000. So the ratio is 1:1.
So current ratio is 2:1. Liquid ratio is 1:1. 2:1 is a current. 2:1 is a current ratio, and 1:1 is a liquid ratio. And at last in this question, the question is asking about the calculate the working capital. So how we will calculate the working capital? So the working capital equals to current assets minus current liability. What is the formula of working capital? Working capital equals to current assets minus current liability, and the current assets will be a 3,40,000 minus current liability is 1,70,000. So working capital is also 1,70,000. So कुछ ऐसी चीजें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के इक्विवेलेंट है. सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. और आज हम लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो से ही डिस्कस किया है. ओके कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एज वेल एज the ratios related to the liquidity ratio, and how we will why we calculate the liquidity ratio. Liquidity ratio is a ratio by which company estimates and estimate about the forecasting about the short term solvency position of the company. So now we are moving to the next question. And the question is calculate current ratio from the following information. And this question is asked in the last few years. There is a total assets 3 lakh, non-current liability 80,000, shareholder fund 2 lakh, non-current assets fixed assets 1,60,000 and non-current investment is a 1 lakh. So इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए फिर इस क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए क्वेश्चंस इज अ मिक्सचर ऑफ द गेम. जैसे आप गेम खेलते हैं वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं. गेम में जैसे लेवल्स होते हैं वैसे क्वेश्चंस में भी लेवल्स होते हैं. डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल एंड इजी लेवल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशियो. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट रेशियो. एंड द इंफॉर्मेशन इज टोटल एसेट्स 3 lakh, and non-current liabilities 80,000 and shareholder fund is 2 lakh fixed assets 1,60,000 non-current investment 1 lakh. ठीक. सो आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो, टोटल एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द करंट रेशियो. करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट्स कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड है, फिक्स्ड एसेट्स है. तो टोटल एसेट्स में अगर हम फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर दें तो क्या हमारा इजीली नहीं निकल जाएगा करंट रेशियो, करंट एसेट. यस सर. सो टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करवाया है. 3 lakh माइनस फिक्स्ड एसेट्स इज 1,60,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 1 lakh. So 3 lakh minus 2,60,000. So current assets 40,000. Current liability equals to total assets. Total assets क्योंकि total assets is equivalent to the total of the liability side. So total assets minus non-current liability plus shareholder fund. So total assets will be a 3 lakh, non-current liability is 80,000 and shareholder fund is 2 lakh. So 3 lakh minus 2,80,000 equals to 20,000. So current ratio equals to 40,000 divided by 20,000. So the ratio is 2:1.
So this is the solution of the very easy question. Now we are moving to the next question. अगर हम थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात करें, सो यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन से दैट कि समरी अगर हम लोग बनाएं, थोड़ा सा समरी ऑफ टुडेज वीडियो, कि बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं लिक्विड रेशियो के. पहला होता है करंट रेशियो. सो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ओके. एंड दूसरी अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो रेशियो होता है वो होता है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ओके. सो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. और इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सो वी कैन से दैट करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू द ऑल द शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड एनी एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. सो उसके कई फॉर्मूला हो सकते हैं. सीधा सीधा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स का ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्रूड इनकम. एंड अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो इंक्लूड ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. और अगर क्विक एसेट्स की बात करें तो क्विक एसेट्स इज द एसेट्स व्हिच आर रेडी टू कन्वर्ट इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है. जैसे कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस. यानी कि जब हम करंट एसेट से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस, सो इट विल बी नोन एज एन क्विक रेशियो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर हम आइडियल की बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, सो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1. अगर क्वेश्चन में आपके आइडियलिज्म की बात करेंगे कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, तो वो होता है 2:1. यानी करंट एसेट एंड करंट रेशियो के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 2:1, विच इज ऑल्सो नोन एज एन आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 एंड आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1. और आइडियल लिक्विड रेशियो होता है आपका 1:1. इट मींस एक आइडियल फर्म की जो लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, वो करंट एसेट्स होनी चाहिए, वो करंट लायबिलिटी की जस्ट डबल होनी चाहिए. और लिक्विड रेशियो के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विड एसेट्स होती है वो करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ताकि कंपनी इमीडिएट अपने शॉर्ट टर्म्स लोन्स को, शॉर्ट टर्म्स डेब्ट्स को तुरंत रीपे करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो. और अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वी कैन से दैट, हम क्वेश्चन में इजीली कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो रेशियो आया है, करंट रेशियो आया है 2:1. सो अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये इस फर्म का जो करंट रेशियो है वो सही है. इट मींस कंपनी का जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, यानी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म्स लोन को पे करने के लिए कैपेबल है, वो अपने शॉर्ट टर्म्स लोन्स को इजीली पे आउट कर सकती है. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको करंट रेशियोज गिवन और आपको बताना पड़ेगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उससे आपका करंट रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, अप्स होगा कि डाउन्स होगा. इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी सारे कंटेंट पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि करंट रेशियोज गिवन एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आल्सो गिवन, लाइक रीपेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल. तो अगर ट्रेड पेबल का हम पेमेंट करते हैं तो हमारा करंट रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा कि कोई चेंज नहीं होगा. इस तरह की चीजें भी क्या होती हैं, हमारे सिलेबस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं. ओके. सो आज के इस पूरे वीडियो में इतना ही. आई होप कि आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो आपके लिए काफी अंडरस्टैंडेबल रहा होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस गिवन है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन टेस्ट एग्जामिनेशन which are related to the accounting ratio. Thank you. Thanks a lot and take care. So, and the very important thing for your
अपकमिंग रिवीजन टेस्ट 3, एज यू नो वेरी वेल कि आपका पूरा रिवीजन टेस्ट जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो आप डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो अप करिए और अकाउंटिंग रेशियोज के जितने भी रेशियोज मैंने पढ़ाए हैं उन सब के क्वेश्चंस पे डिस्कस करिएगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप you are doing best in the upcoming examination and hope for the best, and please do not be nervous होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सक्सेस आपको हमेशा कभी ना कभी मिलती है, थोड़ी लेट मिलती है लेकिन मिलती ज़रूर है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।